ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب آپشن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ مچاتی وہاں ادیبوں کو کچھ کام کرنے کا موقع بھی ملا، اور جب یہ کورونا کی پہلی لہر آئی تو ہم بہت محصور ہو کر رہ گئے اپنی دیواروں کے اندر، اور ڈپریشن کا یہ عالم تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ تو میری اہلیہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ ان سفر ناموں کو میں جمع کرتی ہوں اور ان کو پبلش کروانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ میں نے بھی ہاں بھر لی، اور یوں انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور سفر ناموں کو جمع کیا اور ان کو ان کی نوک پلک جو ہے وہ سنبھالی، اور پھر ہم نے قاسمی کتب خانہ کو میں نے ان ملکوں کے لکھے ہیں جن کا میں نے وقتاً فوقتاً دورہ کیا ہے۔ یہ سفر نامے ہمارے ملک کے کچھ خطوں پر بھی مبنی ہیں۔ یعنی جب میں لکھنؤ گیا پہلی دفعہ، یا جب یاور عباس کشمیر آئے تو ان کے ساتھ 5 دن گزارنے کا موقع ملا، اور اس زمانے میں جو تجربات رہے وہ میں اخبار کے کالم کے لیے لکھتا تھا متواتر طور پر جب بھی کہیں کا دورہ کرتا تھا۔ لیکن یہ سارے کی داستانیں بھری پڑی اسلامی عقائد میں معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ سکھ مت میں بھی گرو نانک دیو جی مہاراج کے بارے میں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ انہیں کئی بار ایک ہی دن اور وقت میں 2 جگہوں پر دیکھا گیا ہے۔ بابا گورکھ ناتھ کے حوالے سے بھی کئی چمتکاری یاتراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ دراصل روحانی سفر کے اس عقیدہ یا آستھا کا تعلق اب ایک لفظ ہے حضور اور غیاب، یعنی ایبسنس یعنی پریزنس اور ایبسنس، اور بڑی حد تک ڈیکارٹ کے بینگ اینڈ نتھنگنس کے تصورات سے اس کا تعلق ہے، جس کا بیان تصوف اور بھکتی اور ایگزسٹینشیلزم کے فلسفے میں ملتا ہے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ انسان جسمانی طور پر ایک جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی دوسری جگہ کا سفر کیسے کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور آستھا کے مطابق روحانی سفر بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر دھرم یہ مانتا ہے کہ انسان ناری نہیں نوری ہے۔ کلام پاک میں ایک سورت کا نام ہی سورہ نور ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں کبیر داس کا یہ شعر شامل ہے: اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور دے سب جگ اپجا، کون بھلے کو مندے۔ اور نور یعنی روشنی، لائٹ، پلک جھپکتے میں کہیں سے کہیں کا سفر کر سکتی ہے۔ اس لیے روحانی سفر کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال روحانی سفر سے متعلق آستھا اور عقیدہ کی باتوں کو فی الحال رہنے دیں۔ ادب میں شعور کی رو
या स्ट्रीम ऑफ कंससनेस की बातें बहुत की जाती हैं। फुरतुल हैदर के नावल आग का दरिया से लेकर इंतज़ार हुसैन के अफसानों तक में इस तकनीक की मौजूदगी के हवाले दिए जाते हैं। आज के दौर में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने ऐसे कई अफसाने लिखे थे जिनमें ज़हनी सफ़र या स्ट्रीम ऑफ कंससनेस की तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसकी अच्छी मिसाल ज़ौक़ी का एक अफसाना असल वाक़ये की ज़ेरॉक्स कॉपी है। दूसरी बात ये कि ये तो सभी जानते हैं कि अदब ज़बान का खेल, लैंग्वेज गेम है, लेकिन शायरी में अल्फाज का अनकॉन्शस या लाशऊरी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जबकि सफ़रनामा में ज़बान यानी अल्फाज की क़ुव्वतों का लाशऊरी से ज़्यादा शऊरी इस्तेमाल होता है। ये फ़र्क है। यानी दूसरे जो क्रिएटिव जेनर्स हैं उनमें और यात्रा वृत्तांत भी है सफ़रनामे में, और लफ्ज़ यानी ज़बान की क़ुव्वतें कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, इसका 2 और 2 4 की तरह जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि लफ्ज़ अल्फाज सिर्फ मानी नहीं देते, मंजर, कैफियत और तासुर की तस्वीर कशी भी करते हैं। अल्फाज से प्यार मोहब्बत की रोशनी की किरणें भी फूटती हैं, और अल्फाज से लाग लगाव की खुशबू का भी असरार होता है। लिहाजा किसी भी सफ़रनामे की कामयाबी का इन्हिसार अल्फाज यानी ज़बान की क़ुव्वतों के माहिराना तख्लीक़ी बर्ताव, क्रिएटिव ट्रीटमेंट पर ही होता है। और प्रोफेसर शहाब मलिक के सफ़रनामों में इन खूबियों की जलती बुझती किरणें मौजूद है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। और पढ़े आपके पास वक्त है? ठीक। शहाब के सफ़रनामों को डॉक्टर शहनाज कादरी ने तरतीब दिया है और मुकदमा भी लिखा है। मुकदमा में सफ़रनामा की हैत, फॉर्म, इब्तिदा और इर्तिका और शहाब के सफ़रनामों पर एक एक करके अपनी राय दी गई है, इसलिए यहाँ इन बातों को दोहराना मुनासिब नहीं है। फिर भी कुछ बातों का इजाफा किया जा सकता है। मसलन सफ़रनामा, ट्रैवलॉग या यात्रा वृत्तांत एक कदीम सिंफ है। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी ज़बान होगी जिसमें सफ़रनामा निगारी की रवायत मौजूद न हो। अगर देखा जाए तो इंसानी तहजीब और इल्म व अदब के इर्तिक़ा का इन्हिसार ही सफ़र पर रहा है, कभी समाजी, कभी मुआशी और कभी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के तहत, और कभी नए जहानों की तलाश व जुस्तजू के शौक़ से की वजह से इंसानी ग्रोहों के सफ़र की कहानियाँ तारीख़ की किताबों में बिखरी पड़ी हैं। कहा जाता है और सबको मालूम भी है कि 500 से लेकर 1500 क़बल मसीह के दौरान वस्त एशिया से आर्यों के ग्रोह मशरिक़ वस्ता और शुमाली यूरोप के इलाकों से उठकर ईरान और तुरान से होते हुए हिंदुस्तान में दरियाए सिंध के आसपास के इलाकों में आबाद हो गए। और फिर जब आर्यों के नए ग्रोह आए तो बाज़ पुराने ग्रोह 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की तरफ चले गए और कई ग्रोह सफ़र करते हुए गंगा और जमुना की वादियों में फैल गए। आर्यों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक का ये सफ़र 10-20 बरसों में नहीं बल्कि सैकड़ों बरसों में तय किया। ये भी कहा जाता है कि आर्यों से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में भी आबाद हुए। हालांकि पंडित कधन ने राज तरंगनी में जम्मू कश्मीर में इंसानी आबादी के फलने फूलने की दूसरी ही कहानी पेश की है। वेदों से लेकर महाभारत और रामायण में भी यात्राओं के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों की मंजरकशी, वाक़यात, मकामात और शख्सियात का जिक्र। शहाब साहब और इस हाल में तशरीफ़ फरमा ख़वातीन और हज़रात,
اگر پہلے بلکہ سے بھی زیادہ کئی عالم فاضل مورخ نقاد ریاست جموں کشمیر نے پیدا کیے، اور اس میں وادی چناب کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ چنانچہ بدروا کو اس سلسلہ میں پرنوشت سوانح عمری ہے، حالانکہ ابھی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ اپنی سوانح عمری لکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بری ہے، مگر انہوں نے جس بے باکی اور صفائی کے ساتھ اپنے گھریلو حالات اور اپنے ذاتی حالات کو اس میں پیش کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے بغیر کسی بناوٹ کے اس کتاب کو لکھا اور شائع کیا، میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت جو ہے منفرد کوشش ہے۔ اب سفر کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو اگر چین جانے کی بھی ضرورت پڑے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ آپ مشاہدہ کرو، اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھو، آپ کی حکمت، آپ کی واقفیت اور آپ کے تجربات میں اضافہ ہوگا۔ اب سفر تو سارے کرتے ہیں، سفر نامے بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں، لیکن ان سفر نامہ ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ استوار ہونی چاہیے، اس میں حقیقت نگاری ہونی چاہیے، اور تقریباً جس جگہ کو انہوں نے کیا اس کے اہم پہلو اس میں ان کی عکاسی ہونی چاہیے۔ ہمارے پروفیسر بدو جاوید صاحب نے بہت ایک طویل مدلل اور عالمانہ قسم کا پرچہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے مقابلے میں تو وہی ہے کہ آفتاب کو چراغ دکھانے والی بات ہے، مگر جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، یہ جو ان کے سفر نامے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاہد صاحب ایک بچے کو یا اپنے کسی مہمان کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ یہ لکھنؤ کا شہر ہے، یہ مصر ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، موریشس ہے، انگلینڈ ہے، وہاں جو ہے لے جاتے ہیں، اور اس کو وہاں کی اہم چیزوں کے بارے میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں، مطلب جس طرح مجھے رسا صاحب کی شاعری کا رومانی پہلو پسند آیا، اسی طرح سے ان کا یہ پہلو کہ انہوں نے وہاں پر، اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، ایک بات کرتے کرتے دوسرا کچھ ملایا نہیں، جیسے ایک فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے اس کی ایک اتنی خوبصورت عکاسی کی ہے کہ عام طور پر میں نے بھی سفر نامہ لکھا ہے، سفر حرمین جب بھائی سے واپس آئے، اور کئی لوگوں کے سفر نامے میں نے پڑھے، لیکن انہوں نے جس حساب سے کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک منفرد کوشش ہے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی سب سے بڑی مبارکباد ان کو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کووڈ کی اس مہلک بیماری میں بری طرح متاثر ہونے کے باوجود بھی بدو جاوید صاحب اور شہاب صاحب جو ہیں یہ روب صحت ہوئے، اور آج یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں بہت تشویش تھی جب یہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ ایک اور فیصلہ جو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے دیا کہ ان کو یہاں پر جو ہے انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس کا پرنسپل کا اضافی چارج دیا، ان کا بہت اچھا یہ جو ہے قدم ہے، کیونکہ اس پوسٹ کے لیے کلچر کو سمجھنے کے لیے، آرٹس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ان جیسا کوئی اور شاید تجربہ کار انسان جو ہے وہ ملنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ وہاں بھی کام کر رہے ہیں، میں وہاں بھی گیا، وہاں بھی دیکھا، اب انہوں نے ملازموں کے مشکلات بتائے، ہمیں بھی اس چیز سے جڑے رہے کسی نہ کسی طرح۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ منوج در صاحب نے بہت بڑے بڑے مسئلے حل کیے، وہ ان سے یہی استدعا ہے کہ آپ کے مسائل کو بھی حل کریں، آپ کے سروس کیریئر کو اچھا بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی کہ ریاض صاحب کا یہ پہلا فنکشن تھا بحیثیت صدر شعبہ، اس سے پہلے تو کئی پروگرام انہوں نے کرائے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے کوئی فنکشن ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی آپ ایک حقدار کو اپنا حق ملا۔ لیکن جہاں تک یہ کتابیں ہیں، یہ جو سفر نامے ہیں، ان پر ہسٹری لکھی جاتی ہے،
आप ह्यून सांग, फायान और बड़े बड़े जो ट्रेवलर्स आए, दिल्ली चनाब दिल्ली में वाइन आया, और उसके बाद वो जुगल ब्रदर्स आए, उसके बाद ये जो है वो फेडरिक ट्रियो आया, और कश्मीर में वाटर लाइनेंस जो बंदोबस्त का अफसर आला था वो गाँव गया, करिया गया, उन लोगों से मिला, और उसने एक ऐसी दस्तावेजी किताब जो है वो तैयार की, द वैली ऑफ कश्मीर। तो इसी तरह से शहाब साहब ने भी जो इसमें डिटेल दी है, वो टाइम नहीं है, मैं इस पर लिखा है, मेरा मजमून ज़िक्र फिक्र किताब में छपा है, और भी दूसरी किताब जो इस वक्त ज़ेर तबा है उसमें भी है। तो मुझे मतलब ये दो चीज़ें जो खुद नविश्त सवानी उम्री और ये जो है इनकी मुनफरिद कोशिशें हैं, इसके लिए मैं इनको इस किताब के इजरा होने पर एक बार और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। जम्मू सूबे के तनकीद निगार हैं, उनमें मेरे हवाले से आपने तवील मजमून लिखा है, और जब वो किताब शाया होगी तो एक मुहासबा करने की कोशिश की है आपने मेरी तहकीकात का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज दर साहब हमारे वाइस चांसलर हैं। कोविड के बाद ये हमारी यूनिवर्सिटी की पहली ऑफलाइन नशिस्त है, दूसरी लहर के बाद, और पहली लहर की आखिरी ऑफलाइन नशिस्त भी उर्दू डिपार्टमेंट की हुई थी, वर्कशॉप और रिफ्रेशर कोर्स। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि इम्फा हमारा फेस है शोबे जम्मू यूनिवर्सिटी का, अपनी गुज़िश्ता मुलाकात में, और जितना हम इम्फा को ऊपर उठाएंगे हमारी इमेज जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो और हो जाएगा रोशन, क्योंकि इससे वाबस्ता बड़े बड़े कलाकार ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने पद्मश्री के अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं, और बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। काफ़ी तवील मुलाकात मेरी इनके घर पे हुई, और सिर्फ इम्फा डिस्कशन में रहा। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि इम्फा को अदब के साथ हम जोड़ें, जो मेरा एक नया, और इस सिलसिले में प्रोफेसर तकी आबदी को मैंने एक लेक्चर देने को कहा है अनकरीब के मौसीकियत के हवाले से, जिसमें इम्फा की तरफ से होगा। मैंने सर से गुजारिश की थी कि हमने एक छोटी सी नशिस्त रखी है इम्फा की जानब से गज़ल की सैटरडे को, लेकिन ये उस दिन नहीं आ रहे हैं सर। हम वो तकरीब जो है मुलतवी कर रहे हैं, और नेक्स्ट सैटरडे को हम आज ही आपसे टाइम ले लेते हैं, ताकि हम आपको वहाँ पर बुलाकर और आपको अपने कलाकारों के कला दिखाकर इनके मसाइल को हल करने की कोशिश की करेंगे। तो आप इस तकरीब में आए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मैं इल्तमास करता हूँ कि आप यहाँ आए। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज, जैसे जावेद साहब ने कहा कि सफरनामे में सबसे ज़्यादा मैं बड़ी कीनली इनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा सफरनामे में एक खासियत होती है कि जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि उस बारे में लैंग्वेज के लिहाज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और मैं एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया, और पहले भी इन्होंने लिखे हैं, और ये वाली कोशिश भी इनकी रही। और साथ में जो एक अच्छी बात ये हुई कि ये खुद, ऑल्दो ये खुद भी कोविड से मुब्तला हो गए थे, लेकिन उससे भी इन्होंने कामयाबी हासिल की, और उसके बाद ये जो चीज़ें थी इनको कंपाइल किया, वो अपना टाइम जो है वो इसमें यूटिलाइज किया, कि सारा कंपाइलेशन किया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कोविड की वजह से जो मौका मिला उसको इन्होंने बखूबी जो है उसका इस्तेमाल किया। डॉक्टर शहनाज ने इनकी मदद की, और ये सब जो है कंपाइलेशन पॉसिबल हो पाया। तो डॉक्टर शहनाज को भी मैं दोबारा मिलना चाहता हूँ, शायद यहाँ है नहीं आज। अच्छा,
तो उनको भी मेरी तरफ से आप कंग्रेचुलेशंस करिएगा। रहा सवाल जो दूसरा एस्पेक्ट जिन्होंने आज जिसका जिक्र उन्होंने किया, तो यूनिवर्सिटी पहले से भी इस बारे में एक मैं कहता हूँ कमिटेड है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारी फैकल्टी है, उनको परेशानियाँ ना हो, एक ऐसा माहौल जो है यूनिवर्सिटी में बने जिससे कि लोग अच्छे से काम अपना कर सकें, अपने लाइफ को, अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। अब इससे मैं इतना ही कहूँगा कि इंफा का जो समस्याएं हैं वो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, जो कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही होती हैं। तो इंफा का भी यही हाल है। इंफा की परेशानियां इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनका निपटारा जो है वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। वो ऐसे ओपीडी में जाके अपना बैंडेज बनवाने से नहीं होगा। और परेशानी ये है कि हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इमरजेंसी में जाके अपना जो है उस टाइम पे जो जख्म है उसका इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो बेसिक डिजीज है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसके बारे में नहीं सोचते। तो जब तक इस बेसिक चीज को आप नहीं कर पाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वही बात मैंने इनसे भी करी है कि इसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको कहते हैं वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेरिडिटी जो अपने आप जिसको आप कहें इनहेरेंट, जिसको मैं बात कर रहा हूँ, अगर उन प्रॉब्लम्स के साथ चलते रहेंगे, कल्चरल एकेडमी के जो इश्यूज रहे हैं, अगर आप उनको साथ मिलके चलते रहेंगे तो ये समस्याएं कभी समाधान नहीं होगी। एक स्टेज पर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की चीज़ें, यूजीसी की चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और जिस दिन आप ये अपने आप में ये फैसला लेके आएंगे कि यूजीसी की चीज़ें करी जाएँ। मुझे याद है शौक साहब, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में 2-4 ऐसे इश्यूज थे, क्योंकि मैं अब इस यूनिवर्सिटी में मेरा 35वां साल है। तो 35 साल की जो मेरी जर्नी रही है, तो अब शायद कहने में थोड़ा खराब लगे, लेकिन ये बाल जो है वो वैसे ही सफ़ेद नहीं हुए। तो 35 साल की जो मेरी जर्नी है, मुझे बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जब से मैं स्टूडेंट लाइफ से अभी तक आया हूँ तो मुझे सब परेशानियों का पता है। तो आपको आप में से कुछ लोगों को याद होगा शायद कि मैंने एक मीटिंग करी थी अपने ऑफिस में, शायद आने के ज्वाइन करने के कुछ ही देर बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे पता था जब मैं रजिस्ट्रार था तब भी मुझे पता था कि इंफा के जो इश्यूज हैं, इंफा की जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। उस टाइम पे भी बहुत सारे मसले सामने आए थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। उस बात का मुझे नॉलेज थी और मुझे लगता था कि अब जब मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ और ये सारी कुछ इश्यूज शायद मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरी एक मीटिंग हुई थी जहाँ मैंने क्लियरली बताया था कि अगर हमने आगे बढ़ना है और इंफा का जो है डेवलपमेंट और उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए काम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो लेगेसी है, आपकी जो पास्ट है, उसमें कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद हम नया सवेरा आना चाहिए, नई कोशिश होनी चाहिए और हम पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के सिस्टम के साथ एमलगमेट करने चाहिए। आपके सैलरी कंपोनेंट्स, आपकी जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं नहीं मिलते यूनिवर्सिटी के सेटअप के साथ। उनको किसी एक लेवल पे लाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी और उस कोशिश में जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जगह मैं बैठ जाऊँ या कोई और 10 वाइस चांसलर बैठ जाएं, लेकिन ये मसले तब तक हल नहीं होंगे जब तक आप खुद अपनी दिल से ये नहीं चाहेंगे कि हाँ हम यहाँ से आगे अब हम एक नया रास्ता तैयार करेंगे। और वो मैंने शहाब साहब को कहा कि आप बैठिए, आप पूरा इसको स्टडी करिए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि उसमें करेक्शंस की ज़रूरत है,
नई सोच की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, वो नई सोच इसमें लाइए और अपने जो पुराने आपके इनहेरेंट इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं आप छोड़ दें। आप सोच लीजिए कि अब हमारा रास्ता ये है, उससे रास्ता निकल आएगा। ये बात शायद आज की फंक्शन के लिए रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि सिंस शहाब साहब ने कहा है और यहाँ ये बात करी है और आप सब लोग हैं, तो इसलिए आप तक सीधी बात पहुँचे कि हम लोग आप लोगों को इकट्ठे आके सर इनको सब आज बनाने मसलों का को मकसद भी यही था कि आपकी जी। ज़बानी ये सुनना चाहते थे। इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया और प्रोफेसर मनोज कुमार दहर वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसे रिलीज़ किया और शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस तकरीब का इनेकाद किया था, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जो है वो हिस्सा लिया। ये किताब जो है उन सफ़रनामों पर मुश्तमिल है जो मैंने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के किए और मुल्क से बाहर मसलन लंदन, मिस्र, बांग्लादेश, मॉरिशस और पाकिस्तान के सफ़रनामे भी इस किताब में शामिल हैं।